Hello, students. Welcome back in my YouTube channel. Today, we are going to start a new chapter of Class 8, The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. This is a very interesting story, and this is a science fiction. At first, we will study or we will read about the author. The author is Isaac Asimov, and he was a prolific Russian born American writer, and he was known for a science fiction. और ये जो दफन दे हैड ये एक साइंस फिक्शन है. It means in this story we are going to study about a future school of 2155. So his famous books are Nightfall, Foundation, Second Foundation, The Caves of Still, and End of Eternity. These are the famous books are there. So we should study at first the short summary of the fun they had. This is the mind map of the fun they had. In this story, there is a two characters. One is a Maggie, and second one is a Tommy. Maggie and Tommy. Maggie is 11 years old, and Tommy is 13 years old. मार्गी और टॉमी एक फ्यूचर स्कूल में पढ़ते हैं, और ये जो स्कूल बताया गया है ये स्कूल है 2155 का. वहाँ पे क्या क्या है? देर इज़ अ रोबोटिक टीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, can have tens of books in a computer, and they read on a screen, and words are moving. And where that in which school you are studying, आपके स्कूल में पढ़ते हो, उसमें टेक्स्ट बुक होता है, कॉपीज होता है, पेन्स होता है, और फिर यू आर रीडिंग इन अ कॉपी एंड वर्ड्स डू नॉट मूव. ये देख करके टॉमी को एक बुक मिला, दैट इज देयर इन एटिक. और what was written in that book? In that book, it was written about an old book. That was the book of a centuries ago. And what happened? Margie's become really very excited to see the book. वो बहुत excited होती है. क्या उसमें लिखा हुआ है? So what is that? She asks with her brother कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है. तो टॉमी बोला कि उसमें पुराने स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. तो what happened? Margie becomes really very different or curious why anybody will write about the school. बिकॉज मार्गी हेटेड हर स्कूल वेरी मच. वो बहुत हेट करती है क्योंकि क्योंकि ये स्कूल तो नॉर्मल स्कूल नहीं होता है. ये स्कूल होता है लाइक दैट, बेडरूम के बगल में स्कूल है, मैकेनिकल टीचर आते हैं और वो टेस्ट लेते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं. रियली इट वॉज अ बोरिंग. सो दैट उसने एक डायरी लिखा. डायरी का डेट क्या था? 17 May 2155. In the same way, what happened then? Tommy explained her that this is not the mechanical school. This is the old school in which uh, there is a building. In that building, all the student goes to school to study, and there is a human teacher who can understand their problem, and they show the solution also. So this is a very different school. Or in the same way, Margie and Tommy both were speaking that really the old student have really had a fun. उन लोगों के पास बहुत फन होगा, और हमारी लाइफ कैसी है? बहुत ही बोरिंग है. So this is the summary of the story, and now we are going to discuss some questions answer.
The first question is, what was awfully funny about the words written in the book found by Tommy? क्या फनी था जो कि टॉमी के बुक में टॉमी के टॉमी को जो बुक मिला था उसमें क्या फनी था? Tommy found a book which was about a school of a few centuries ago. टॉमी को वह बुक मिला था जो सेंचुरीज एगो वाली बुक थी, और ही फाउंड द बुक वेरी फनी. उसको बहुत फनी ये इस बुक लगा, क्योंकि at the times men uses to be a teacher in a school, and school had a special building where teachers and kids studied together. और ये बुक उस समय का था जब स्कूल एक बिल्डिंग हुआ करती थी, और फिर टीचर्स उसमें आगे पढ़ाते थे, एंड किड्स वेर ऑल्सो स्टडी देयर. बट टॉमी किस में पढ़ रहा था? टॉमी एंड मार्गी वर स्टडिंग इन अ मैकेनिकल स्कूल, एंड द स्कूल इज टोटली डिफरेंट, and the school is just beside the bedroom. That's why they just think that really it is a funny to study in that school, old school. Second question is, why had Margie started hating her school more than ever? मार्गी अपने स्कूल को क्यों नफरत करती है? बहुत ज़्यादा. The mechanical teacher had been giving Margie much homework and tests in geography, which was done badly by her. उसके स्कूल में मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं, और वो हमेशा मार्गी को से टेस्ट लेते रहते हैं, और वो भी स्पेशली इन जोग्राफी सेक्टर. एंड रियली, और जोग्राफी सेक्टर मार्गी की बहुत ख़राब थी. द मोस्ट पार्ट सी हेटेड वॉज टू पुट द होमवर्क इन अ स्लॉट. और उसको बहुत ख़राब लगता था, बहुत बोरिंग लगता था दैट एवरी डे होमवर्क बनाओ और एक स्लॉट में फिक्स करो और इंसर्ट कीजिए. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वाज द कॉम्प्लिकेशंस इन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ अ मार्गीज टीचर? मार्गीज के टीचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस था, प्रॉब्लम था. सो क्या प्रॉब्लम था मार्गी के टीचर में? देयर वाज अ कॉम्प्लिकेशन इन ज्योग्राफी सेक्टर. इट्स लेवल वाज सेट मोर देन मार्गीज एज. ये मैकेनिकल टीचर में जो था, उसका जो लेवल था वो मार्गीज के एज से ज़्यादा सेट किया हुआ था. सो इट वॉज गिविंग टू मच होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स विच वर बियॉन्ड द लेवल ऑफ मार्गी. और वो मैकेनिकल टीचर हमेशा बहुत होमवर्क देते थे किसको? मार्गी को, और हमेशा टेस्ट लेते रहते थे मार्गी से. और इसमें क्या होता था, मार्गी का मार्क्स बहुत ख़राब होता था, क्योंकि वो जो लेवल था वो मार्गी के लेवल से कहीं ज़्यादा, कहीं ऊपर का वो लेवल सेट किया हुआ था. दैट्स वाई मार्गी स्टार्ट हेटिंग हर टीचर एंड स्कूल ऑल्सो. फोर्थ क्वेश्चन इज, मार्गी थॉट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. Whom did he and it refers to? Why did Margie not want it to be put it together? मार्गी सोचती थी कि he would not know how to put it together, कि वह उनको पता नहीं होना चाहिए कि इसको कैसे जोड़ा जाए. और यहाँ पर जो है, इसको जोड़ने का मतलब होता है कि एक्चुअली सम प्रॉब्लम आ गया था मार्गी के टीचर में, मैकेनिकल टीचर में. दैट्स वाई उनकी मम्मी ने उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई थी ठीक करने के लिए. सो व्हाट हैपन, दिस काउंटी इंस्पेक्टर हैज़ पार्टेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ मैकेनिकल टीचर. सो उस समय ही मार्गी सोच रही थी कि उस काउंटी इंस्पेक्टर को इसको कैसे एक साथ बनाया जाए, उसको नहीं आए. तो होम डू ही एंड इट रेफर्स टू. तो यहाँ पे इट रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर. यहाँ पे इट कौन है? यहाँ पे इट है, ये इट है मैकेनिकल टीचर. इट इज़ ए मैकेनिकल टीचर एंड ही इज़ रेफर टू द काउंटी इंस्पेक्टर. यहाँ पे ही कौन है? ही इज़ काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाया गया था उसके प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए. एंड मार्गी वॉज टायर्ड ऑफ हर स्कूल. वो परेशान हो गए थे अपने स्कूल से.
सी wanted टू गेट rid ऑफ her स्कूल फॉर सम डेज, और उसे छुटकारा पाना था किसी तरह से कुछ दिनों के लिए. सो सी डिड नॉट वॉन्ट मैकेनिकल टीचर टू पुट इट टुगेदर. इसीलिए वह सोच रही थी कि मैकेनिकल टीचर को इस काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं आए कि वो उसको कैसे वो तुरंत फिक्स कर दे. अगर वो उसको नहीं आएगा हाउ टू फिक्स इट टुगेदर, देन मैकेनिकल टीचर विल नॉट टीच हर. दैट्स वाई शी वॉज थिंकिंग दैट काउंटी इंस्पेक्टर डोंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर. This is the hot question is there, Hots. What a waste. What is Tommy referring to as a waste? Is it really a waste? Discuss. What a waste. What is Tommy referring to as a waste? टॉमी को क्या लगा कि यह बर्बाद चीज़ है, बेकार चीज़ है? और क्या आप सोच रहे हो कि यह सच में बेकार चीज़ था? टॉमी इज रेफरिंग टू द ओल्ड बुक एज अ वेस्ट. टॉमी इस ओल्ड बुक को वह बेकार चीज़ लग रहा था. नो, इट इज़ नॉट रियली अ वेस्ट एट ऑल. नहीं, बुक्स तो कभी वेस्ट हो ही नहीं सकता है. द बुक इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रू गाइड. बुक्स हमारा क्या है? ट्रू फ्रेंड है और बेस्ट गाइड है. देर आर मेनी बुक्स, काइंड ऑफ अ बुक्स वी सर्व आवर डिफरेंट इंटरेस्ट. मार्केट में बहुत से बुक्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट के लेवल पे है. एंड वी कैन डिपेंड्स ऑन द बुक्स फॉर एनी हेल्प और नॉलेज. और हम लोग कोई भी नॉलेज के लिए हमेशा कोई भी बुक्स पे ही डिपेंड होते हैं. दैट्स वाई what is that? Margie told Tommy not to throw the book, and it is not a waste. Second question of a horse. How could a man be a teacher? Says Margie. मार्गी ने बोला था, अरे कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है? क्योंकि मार्गी खुद तो पढ़ती थी मैकेनिकल टीचर से. सो इट वॉज रियली अ स्ट्रेंज फॉर मार्गी टू नो दैट अ ह्यूमन was a teacher in old time, but we do have human teacher. Discuss the advantage and disadvantage of a computer as a teacher and compared to a human teacher. आप एडवांटेज बताइए कंप्यूटर टीचर का और उसका डिसएडवांटेज बताइए. इन द सेम वे आपको कंपेयर करना है कि ह्यूमन टीचर में भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है. द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए कंप्यूटर एज अ टीचर आर वी कैन मेक अ लर्निंग ईजी. अगर हमारे पास कंप्यूटर एज अ टीचर होंगे तो क्या होगा? लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगा. कंप्यूटर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग बाय अ सिंगल क्लिक. हम लोग कंप्यूटर से बाय एक छोटे से क्लिक से ही बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकता है. वी डोंट हैव टू अटेंड अ स्कूल देन. अगर सिर्फ हम डिपेंड हो जाएंगे कंप्यूटर पे तो हम लोग स्कूल अटेंड करना कोई ज़रूरत नहीं है. बट अ कंप्यूटर इज़ अनबायस एंड इम्पार्शियल. और कंप्यूटर कैसा है? निष्पक्ष और इम्पार्शियल होता है, अपक्षपाती है, किसी का पक्ष नहीं लेता है. बट देर इज़ अ वन डिसएडवांटेज दैट वुड बी अ कंप्यूटर कैन नॉट सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ अ स्टूडेंट लाइक अ ह्यूमन टीचर. एक ही डिसएडवांटेज है कंप्यूटर टीचर में कि वो किसी भी स्टूडेंट के जिज्ञासा को या क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर emotionless. Thus, a computer teacher can produce an expert but not a true human being. क्योंकि कंप्यूटर टीचर एक्सपर्ट हो सकता है बट नॉट ए ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बींग्स कभी हो ही नहीं सकता है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग स्किल. आफ्टर डिस्कशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स of two types of a school, can we try to create a situation where the best aspect of the both the schools are included? Write an article for your school magazine expressing your opinion about the perfect school you dream of. आपको स्कूल के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में और फ्यूचर स्कूल्स के बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ को सोच करके आप एक आर्टिकल लिखिए कि उसमें आप अपना ओपिनियन दीजिए कि किस तरह का स्कूल आपको चाहिए.
तो आर्टिकल्स को लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? द टाइटल इज अ स्कूल ऑफ माई ड्रीम. आई लव टू स्टडी इन स्कूल. आई ड्रीम दैट द स्कूल मस्ट हैव बोथ द टाइप्स ऑफ अ टीचर, ह्यूमन एज वेल एज मैकेनिकल. मैं स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ और मेरा एक ड्रीम है जिसमें सिर्फ ह्यूमन टीचर नहीं, मैकेनिकल टीचर भी रहे उसमें. ह्यूमन टीचर वुड टीच अस लैंग्वेज, मोरल वैल्यूज एंड गेम्स. ह्यूमन टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे? लैंग्वेज, moral values, or games, while mathematics, history, and science will be taught by mechanical teacher because I am scared of human teacher regarding these subject. क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, साइंस में. इसीलिए ये सब सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे? मैकेनिकल टीचर. देन आई सेल नॉट स्कॉल्डेड बाय देम. तो क्या होगा? मुझे किसी भी टीचर से डांट नहीं पड़ेगी. एंड वी वुड लर्न थिंग्स इन अ बेटर वे विद हेल्प ऑफ मैकेनिकल टीचर. और अगर वो सब सब्जेक्ट कोई भी मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं तो फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे. सो आई विश वी वुड हैव सच अ स्कूल. सो मुझे आशा है कि एक ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें ह्यूमन टीचर वुड टीच अस द वैल्यू ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी. ह्यूमन टीचर क्या पढ़ाएंगे? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी एंड द वैल्यूज़. On the other hand, mechanical teacher would teach us to be quicker, faster and logical in our approach. और उसमें क्या हो? मैकेनिकल टीचर क्या पढ़ाएंगे कि हम कैसे फास्ट हो जाएं, बहुत जल्दी से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, वो भी अच्छे अप्रोच से. Thus by combining both aspect we would get the best of both the worlds. और इस तरह से अगर स्कूल में दोनों तरह के टीचर होंगे तो स्टूडेंट विल डू देयर बेस्ट. वो क्या करेंगे? सबसे बेस्ट करेंगे. That's all. Thanks for watching. You must comment, share, and subscribe.